Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh CLAT classes. This is Haseeb Chauhan, mentor for your legal reasoning. तो आज में छोटी सी न्यूज़, हालांकि बहुत पहले वायरल हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें आपको इसके बारे में पता है। अब तो ये भी लोग सुन रहे हैं कि कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि किसने कॉम्पनसेशन दिया, क्या कॉम्पनसेशन सफिशिएंट था या नहीं था, इनका डिसीजंस या पहले के क्या थे क्या नहीं थे। मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि इन लोगों पर जो ये वाटर लॉजिंग हुई या वाटर लॉजिंग एक्सीडेंट हुआ या किसकी नेग्लिजेंस थी, अपन उस पर भी बात करेंगे। मैं बात करूंगा कि न्यू बीएनएस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी धाराओं के कौन कौन सी सेक्शंस में इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। तो उन सेक्शंस को समझाना और समझना अपना काम है, क्योंकि अपन हैं लॉ के बंदे। चलिए भाई, DFS received a call about water lodging from Rao IS Study Center at around 7 p.m. A total of 5 fire tenders were rushed to the site. The basement was full of water and officials said. अब जो गए थे फायर फाइटर्स वगैरह, उन्होंने अपनी आंखें देखी चीजें बताई। The bodies of 2 female and male students were retrieved from the site during the rescue operation by the NDRF, local police and fire department. The official added, the identities of the deceased were not revealed by the authorities. उन्होंने बताया नहीं कि कौन थे कौन नहीं थे, किस इनका नाम क्या है वगैरह वगैरह। A case has been registered against the Coaching Institute Deputy Commissioner of Police, Central M. Harshavardhan said case registered under Section 105, 106, Clause 1, 115, Clause 2, 290 and 35 of BNS. This case is against the Coaching Institute and the management of the building and those who are responsible for the maintenance of the drain of that place. तो यहाँ सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया का जो ड्रेनेज सिस्टम मेंटेनेंस करने वाला जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट था, उनको भी साथ में मिक्स किया गया है। अब हम बात करते हैं बीएनएस का 105 नंबर सेक्शन क्या कहता है। सबसे पहले, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को बचाना। The right of private defense of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences. The right of private defense of property against theft continue till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance of the public authorities it's obtained or the property has been recovered. तो यहाँ पर बात हो रही है कि अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से सुरक्षित रखना। The right of private defense of property against robbery continues as long as the offender cause an attempt to cause any person death or hurt or wrongful restraint, as long as the fear of instant death or instant hurt or of instant personal restraint continues. The right of private defense of property against criminal trespass, mischief continues as long as the offender कंटिन्यू इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचिफ। अब यहां पर बात आती है कि सर जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए मैं कब किस तरीके के एक्शन ले सकता हूं, मेरा प्राइवेट डिफेंस कहां से शुरू होगा, कहां तक रहेगा, ये सारी चीजें बीएनएस के 105 में बताई गई है। 106 क्या कहता है? Whoever caused death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. And if such act is done by registered medical practitioner while performing medical procedure, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. तो यहाँ बीएनएस का 106 नंबर क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी के रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, जैसे वो मेंटेनेंस का था, बिल्डिंग मेंटेनेंस अथॉरिटी थी जो इंस्टीट्यूट के मालिक थे, या ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज करने वाला जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने अपना काम लापरवाही से किया और उसी की वजह से वो ड्रेनेज सिस्टम से प्रॉपर तरीके से पानी बाहर नहीं निकल पाया, तो वहीं पर तो डेथ हुई ना उन 3 स्टूडेंट्स की। तो ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आ रहा है, तो उस आदमी की फिर सजा होगी 5 साल एंड फाइन। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर अपना काम लापरवाही से करता है या कोई डॉक्टर को इलाज करते टाइम प्रॉपर केयर नहीं रखता, कॉशियस नहीं रखता, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसकी सजा 2 साल एंड फाइन है। 15 क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इंप्रिजमेंट फॉर अ लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। अबेट करना, उकसाना, कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए सामने वाले को उकसाना, अगर वो ऑफेंस कर दे तो उसकी सजा मौत होगी। ऑफेंस करने वाले की सजा मौत होगी और मैं उसको उस काम के लिए उकसा रहा हूं, लेकिन हुआ क्या कि उसने वो ऑफेंस किया ही नहीं, मेरी बातों में आया ही नहीं, तो मैंने उसको जो भड़काया था, उस भड़काने वाले की, उकसाने वाले की क्या सजा होगी? 15 क्लॉज 2, whoever abet the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in the consequences of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine.
तो अगर कोई भी ऐसा किसी सामने वाले पर्सन को अबेट करता है, किसी ऐसे ऑफेंस को अबेट करने के लिए, ऐसे ऑफेंस को करने के लिए उकसाता है जिसकी सजा डेथ है या फिर उम्र कैद की सजा है, और अगर उसने वो ऑफेंस नहीं भी किया तब भी उस उकसाने वाले को क्लियरली सजा है 7 ईयर तक की, या फिर ऐसे की ऑफेंस के लिए आपने कोई अबेट किया है, सामने वाले को भड़काया जिसकी सजा एक्चुअली बीएनएस में नहीं है, प्रॉपर मेंशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी 7 साल तक की सजा एंड फाइन दोनों है। If act causing harm to be done, consequences, and if any act for which the abater is liable in consequences of the abatement and which cause hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable fine। अब यहाँ पर कह रहा causing harm be done in consequences, अगर वो उसकी बातों में आ जाता है, उसकी बातों में आकर इस तरीके की कोई एक्शन ले लेता, कोई ऐसे हरकत कर देता है, और यहाँ पर अगर उसने कमेंसमेंट नहीं किया, ऑफेंस नहीं किया तो 7 साल, अगर उसने उसकी बातों में आकर उसने वो भड़क गया और वो ऑफेंस कर लिया तो फिर भड़काने वाले की सजा 14 साल एंड फाइन है। सेक्शन 290, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन, रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एटसेट्रा। Whoever in pulling down, जब बिल्डिंग गिराने की बात होती है, बिल्डिंग की रिपेयरिंग की बात होती है, कंस्ट्रक्शन की बात होती है, knowingly or negligently omit to take such measure with that building as is sufficient to guard against any probable danger to human life from the fall of that building or of any part thereof shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with a fine which may extend to 5,000 rupees or with both। क्या कह रहा भाई, जब आप बिल्डिंग गिरा रहे हो, रिपेयरिंग कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस बिल्डिंग को, और आपने उस कंस्ट्रक्शन में, उस पर्टिकुलर रिपेयरिंग में, उस बिल्डिंग को गिराने में ऐसा जानबूझकर या फिर लापरवाही से अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की और इसी वजह से किसी इंसान की जिंदगी को खतरा हो जाता है आपके इस एक्शन की वजह से, जो कंस्ट्रक्शन था बेसमेंट वाला, जो मोस्ट प्रोबेबली कंस्ट्रक्शन था, उसमें एग्जिट नहीं था, उसमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो वो न्यूज में काफी चीजों को बताया गया। तो यहां पर देखेंगे कि बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसा कोई नेग्लिजेंस वर्क करता है तो उसकी सजा 6 महीने तक प्लस 5,000 तक का जुर्माना। BNS section 35, when police may arrest without warrant, any officer may without a order from magistrate and without a warrant arrest any person who commit in the presence of police officer a cognizable offence against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend be less than 7 years or with may extend to 7 years whether with or without fine। तो 1AB इसमें किसी भी पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को बिना किसी वारंट के अरेस्ट करने का पावर दिया गया, जैसे पहले भी था आपके आईपीसी में। तो यहां पर कहा गया बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कब कब अरेस्ट कर सकता है, अगर प्रेजेंस ऑफ पुलिस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करे, या फिर जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट रिसीव्ड हुई हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पुलिस वाले को किसी हैबिचुअल ऑफेंडर की क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जिस पर उसको भरोसा हो, जासूस नहीं होते मुखबिर, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो ऐसी इन सिचुएशंस में उस पर्टिकुलर पर्सन को सस्पिशियस एक्टिविटी करने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। विच में भी कोई ऐसे ऑफेंस की खबर मिली हो, उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिसकी सजा 7 साल या 7 से ज्यादा तक की भी हो सकती है, उसको भी BNS 35 में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट किया जा सकता है। तो अपना मेन जो मकसद था इस पर्टिकुलर न्यूज़ को आप तक पहुंचाने का वो ये था कि इनके ऊपर कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, 105, 106, 1115, 19 और 35। तो मैं सिर्फ इन सेक्शंस को बताना चाहता था आप लोगों को कि कौन कौन सी सिचुएशन में किस किस टाइप की न्यूज़ से जुड़े हुए सेक्शंस आपको समझने होते हैं, ताकि इस तरीके का कोई पैसेज अगर हमारे सामने आता है तो हम आराम से उन चीज़ों को टेक ओवर हैंडल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।